مونگی ایک موچی تھا۔ اس کی دکان گاؤں میں تھی۔ وہ روزانہ صبح دکان کھولتا، دن بھر گاؤں والوں کے پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت کرتا اور جب شام ہوتی تو دکان بند کر کے گھر چلا آتا۔ چونکہ وہ بہت غریب تھا اس لیے اس کی دکان نہایت ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ اس کی مرمت کروا سکتا۔ بارشوں میں اس کی چھت ٹپکنے لگتی تھی اور دکان میں موجود سامان بھیگ جاتا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہوں گے وہ سب سے پہلے دکان کی مرمت کروائے گا۔ ایک روز صبح جب وہ اپنی دکان پر جانے کے لیے بیدار ہوا تو اس کی بیوی لالی بولی، لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں، میں آٹا گوندھ کر رکھتی ہوں، تو جلدی سے لکڑی والے سے مجھے لکڑی لا دے تاکہ میں ناشتہ بناؤں۔ مونگی نے 2 چھپکے پانی کے منہ پر مارے اور گاؤں کی لکڑیوں کی ٹال کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ لکڑیوں کی ٹال پر پہنچا تو وہ بند تھی۔ اس کے پڑوس میں بھوسے والے کی دکان تھی۔ بھوسے کی دکان کا مالک مونگی کا دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ ٹال والا کل شہر گیا تھا اور آج دوپہر تک واپس آئے گا۔ مونگی نے سوچا کہ اگر لکڑیاں نہیں ملی تو پھر لالی ناشتہ کیسے تیار کرے گی۔ یہ سوچ کر اس نے جنگل جانے کی ٹھانی تاکہ وہاں سے کچھ لکڑیاں لے کر گھر چلا جائے۔ جنگل بالکل قریب تھا۔ وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس کے پاس کلہاڑی تو تھی نہیں کہ وہ لکڑیاں کاٹتا، اس لیے جنگل میں پہنچ کر اس نے بہت ساری خشک جھاڑیاں جمع کر لیں۔ پھر ان کا گٹھا بنایا اور اس گٹھے کو اٹھا کر گھر کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ سامنے سے اس کو ایک ننھا منا بونا آتا دکھائی دیا۔ وہ اپنے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ مونگی کو لگا کہ اس کے پاؤں میں تکلیف ہے۔ مونگی ایک رحم دل آدمی تھا۔ بونے کے پاؤں کی تکلیف کا خیال دل میں آیا تو اس کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ اس نے جھاڑیوں کا گٹھا زمین پر رکھا اور بونے کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ بونا جب اس کے قریب پہنچا تو مونگی نے کہا، ایسا معلوم دیتا ہے جیسے تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ بونے نے کہا، میرے پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، دراصل میں نے جو جوتے پہن رکھے ہیں وہ میرے پاؤں سے بہت بڑے ہیں۔ میں تیز تیز چلنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ پاؤں سے اتر جاتے ہیں۔ مونگی نے اس کی بات سن کر اس کے پیروں پر ایک نظر ڈالی۔ بونے کے پاؤں تو چھوٹے چھوٹے تھے مگر اس نے جوتے اتنے بڑے پہنے ہوئے تھے جسے خود مونگی پہنتا تھا۔ اتنے بڑے جوتے پہننے کی وجہ سے ہی بونا زمین پر پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ مونگی نے کہا، اتنے بڑے جوتے پہن کر چلنا پھرنا بہت تکلیف دہ کام ہے۔ یہ جوتے تو بہت بڑے ہیں، تمہیں کہاں سے ملے؟ بونے نے جواب دیا، میں بونوں کی دنیا میں رہتا ہوں۔ ہماری دنیا سامنے والے پہاڑوں کے پیچھے ہے۔ میرا کسی کام سے تمہاری دنیا میں آنا ہوا۔ یہاں پہنچنے کے لیے پہلے تو مجھے پہاڑ پر چڑھنا پڑا اور پھر اترنا بھی پڑا۔ اس وجہ سے میں بہت تھک گیا تھا۔ میرے سامنے ایک جنگل تھا۔ جنگل میں پہنچ کر تھوڑا سا آرام کرنے کی غرض سے میں ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں گھاس پر لیٹ گیا۔ اپنے جوتے اتار کر میں نے اپنے قریب ہی رکھ دیے تھے۔ میری تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی۔ جب میں سو کر اٹھا تو میرے جوتے غائب تھے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میری نظر سامنے درخت پر بیٹھے ایک بڑے سے بندر پر پڑی۔ وہ دانت نکال کر مجھے دیکھ رہا تھا اور اس نے میرے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کی طرف لپکا تو وہ درختوں کی شاخوں پر جھولتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھا۔ جنگل میں جا بجا کاٹنے اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں بغیر جوتوں کے ان پر چل بھی نہیں سکتا تھا لیکن مجبوری تھی۔ میں نے اپنا سفر بھی شروع کر دیا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک جگہ مجھے جھاڑیوں میں یہ جوتے پڑے نظر آئے۔ شاید کسی قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا کیونکہ وہاں پر بہت سے مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن اور دوسری اشیاء بھی پڑی ہوئی تھی۔ یہ جوتے پھٹے پڑے تھے مگر میں نے انہیں غنیمت جانا اور انہیں پہن کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ مونگی نے کہا، یہ جوتے تو بہت ہی تکلیف دہ ہیں مگر فکر کی بات نہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں جوتے بناتا ہوں۔ آج میں اپنا کام نہیں کروں گا، تمہارے لیے
सिबिक और खूबसूरत से जूते बनाऊंगा। उन्हें पहनकर तुम बहुत आराम महसूस करोगे। उसकी बात सुनकर बोना कुछ फिक्रमंद हो गया और बोला, मैं तो बोनों की दुनिया में रहता हूँ, मेरे पास वहीं के पैसे हैं, मगर ये पैसे तुम्हारी दुनिया में नहीं चलेंगे। ये कहकर बोने ने अपनी जेब में हाथ डालकर बोनों की दुनिया के पैसे निकालकर मूंगी को दिखाए। मूंगी ने देखा कि इसकी हथेली पर पीतल के बने हुए छोटे बड़े चौकोर टुकड़े रखे थे। इन पर ना तो कोई तस्वीर थी और ना ही कुछ लिखा हुआ था। मूंगी एक अच्छा आदमी था। उसने बोने से कहा, हाँ, इस तरह के पैसे हमारे यहाँ नहीं चलते, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फिर भी जूते बनाऊंगा। तुम पैसों की तरफ से फिक्र मत करो, समझना वो जूते मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा होंगे। बोना ये सुनकर खुश हो गया। मूंगी उसे साथ लेकर घर आया और जंगल से लाई हुई झाड़ियों का गट्ठा चूल्हे के पास रखकर मूंगी के साथ एक बोने मेहमान को देखकर लाली ने जल्दी से चूल्हा जलाया और नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ते के बाद मूंगी बोने को लेकर अपनी दुकान पर आया और उसके जूते बनाने में मसरूफ हो गया। दोपहर तक जूते तैयार हो गए थे। वो निहायत नरम मुलायम खाल से बने थे और बोने की पिंडलियों तक लंबे थे। बोने ने इन्हें पहनकर देखा, खुश हो गया और बोला, मूंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बहुत खूबसूरत और आरामदेह जूते बनाए हैं। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। अब मैं चलता हूँ ताकि रात होने से पहले अपने घर पहुँच जाऊँ। मूंगी ने उसे खुदा हाफिज कहा और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इस बात को बहुत दिन हो गए। मूंगी उस बोने को भूल गया था। अचानक एक रोज़ रात को उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मूंगी ने दरवाज़ा खोला और ये देखकर बहुत खुश हुआ कि वही बोना उसके दरवाजे पर खड़ा है। सामने एक छोटी सी बग्गी खड़ी थी। बोना उसी बग्गी में सवार होकर आया था। वो बोने को लेकर घर में आ गया। लाली भी बोने को दोबारा अपने घर में देखकर बहुत खुश हुई। उसने गुड़ के मीठे चावल बनाए थे। उसने वो चावल बोने के आगे रखे। बोने को मीठे चावल बहुत पसंद थे। उसने लाली का शुक्रिया अदा किया और चावल खाने में मसरूफ़ हो गया। खाने के बाद उसने मूंगी से कहा, मूंगी, तुम्हारे बनाए हुए जूतों की मेरे मुल्क में हर तरफ धूम मच गई है। वहाँ के तो सब लोग चावल, मेजरी या फिर गंदम के सूखे पौधों से बने जूते पहनते हैं। ऐसे शानदार चमड़े के बने हुए खूबसूरत जूते उन्होंने कभी नहीं देखे थे। इन जूतों की खबर शाही महल में भी पहुंच गई है। हमारे बादशाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और कहा है कि तुम उनके मलका के और उनके बच्चों के जूते बनाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बस अब चलने की तैयारी शुरू कर दो। हमारा बादशाह इस काम का तुम्हें बहुत सा इनाम देगा। बोने की बातें सुनकर मूंगी को खुशी हुई। उसने कहा, हाँ हाँ, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगा। इसी बहाने मैं बोनों की दुनिया भी देख लूँगा। सुना है बोनों की दुनिया बहुत खूबसूरत है। सब लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मूंगी, तुमने ठीक सुना है। हमारी दुनिया के लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की तरह। तुमने भी तो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक पैसा भी नहीं था। इसके बावजूद भी तुमने मुझे जूते बना कर दिए। तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है। उसने भी मेरी बहुत खातिर मदारत की। बोने ने कहा। मूंगी उसकी बात सुनकर बोला, हमने जो किया था वो हमारा फ़र्ज़ था। वैसे भी किसी के काम आना बहुत अच्छी बात है। बोने ने अपनी जेब से सोने की चंद छोटी छोटी डालियाँ निकालकर मूंगी को दी और बोला, ये सोने की डलियाँ हमारे बादशाह ने तुम्हारे लिए भिजवाई हैं ताकि इन्हें बेचकर तुम जूते बनाने के लिए चमड़ा और दूसरी चीज़ें खरीद सको। इसके अलावा तुम्हें एक घोड़ा भी खरीदना पड़ेगा। उस पर बैठकर ही तुम हमारे मुल्क जा सकोगे। वो पहाड़ों के पीछे है और यहाँ से काफ़ी फासले पर है। बस अब तुम तैयारी शुरू कर दो।
मैं 1 हफ्ते बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। ये कहकर बोना अपनी सुनहरी बग्घी में बैठकर वहाँ से रवाना हो गया। बग्घी में एक छोटा सा घोड़ा जता हुआ था। बोना बग्घी पर सवार हो गया तो घोड़ा हल्की सी आवाज़ में हनहनाया, सर घुमाकर मूंगी को देखा और फिर रवाना हो गया। मूंगी ने जब सोने की डलियां लाली को दिखाई तो वो भी बहुत खुश हुई। मूंगी ने अब अपने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। उसने नरम और नाजुक चमड़ा, नए औजार, रेशमी धागा और जूते बनाने में काम आने वाली दूसरी चीज़ें खरीदी। उसने सवारी के लिए एक घोड़ा भी खरीद लिया था। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसके काम को बोनो की दुनिया में भी पसंद किया गया था। अब उसे बोनो की आमद का इंतज़ार था। आखिर खुदा खुदा करके 1 हफ्ता गुजरा और एक सुबह बोना अपनी बग्घी में सवार उसके घर आ पहुंचा। मूंगी तो तैयार ही बैठा था। उसने लाली को खुदा हाफिज़ कहा और बोने के साथ चल पड़ा। बोने की बग्घी आगे आगे थी और मूंगी अपने घोड़े पर सवार उसके पीछे चला आ रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को अबूर करके वो एक मैदान में पहुंचे। मैदान खत्म हुआ तो सामने किसी शहर के आसार नजर आए। उसी शहर में बोना रहता था। मूंगी जब शहर में दाखिल हुआ तो उसने बहुत से छोटे छोटे खूबसूरत घर देखे। वहाँ पर खूब चहल पहल नज़र आ रही थी और छोटे छोटे बोने रंग बिरंगे लिबासों में मलबूस अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। उनके जानवर भी उन्हीं की तरह छोटे थे। मूंगी को गलियों में मुर्गियाँ भी नजर आईं। उन मुर्गियों का कद चूज़ों जितना था और वो भागती फिर रही थी। मूंगी इन्हें देखकर सोचने लगा कि जाने इनके चूज़े कितने बड़े होते होंगे। वहाँ उसे फलों के दरख्त भी नजर आए। वो थे तो दरख्त मगर झाड़ियों जितने और फलों से लदे हुए थे। उनमें लगे सेब हीरो जितने थे और केले मूंगी की छोटी उंगली के बराबर थे। यही हाल उन पर बैठे परिंदों का था। चिड़िया भंवरों जितनी थी और काएं काएं करते कौवे छोटी चिड़ियों के जितने थे। ये तमाम चीज़ें देखने में मूंगी को बड़ा मज़ा आ रहा था। बोना मूंगी को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सी इमारत के पास लाया। ये बादशाह का महल था। ये महल इतना बड़ा था कि मूंगी थोड़ा सा झुककर इसमें दाखिल हो गया। महल के अंदर बादशाह और मलका अपने बहुत से शहजादों और शहजादियों के साथ बैठे थे। मूंगी ने अदब से बादशाह और मलका को सलाम किया। बोने ने मूंगी का तारुफ इन लोगों से करवाया। बादशाह ने कहा, मूंगी, हमें खुशी है कि तुम अपने काम में बहुत माहिर हो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे मुल्क के और बच्चों के जूते तैयार करो। मूंगी ने कहा, जहाँ पना, मैं आप सबके जूते ज़रूर तैयार करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे बनाए हुए जूते आपको ज़रूर पसंद आएंगे। महल का एक बड़ा हाल मूंगी के हवाले कर दिया गया था। मूंगी वहाँ बैठकर अपना काम कर सकता था। उसने थैलों में से अपना सामान निकाल कर रखा। फिर बादशाह, मलका और उनके बच्चों के पाँव की पैमाइश की। उसके बाद वो अपने काम में मशगूल हो गया। उसके रहने सहने और खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। वो मुसलसल 8 रोज़ तक अपने काम में लगा रहा। 8 रोज़ गुजरे तो तमाम जूते तैयार हो गए थे। उसके बनाए हुए जूते इतने खूबसूरत थे कि बादशाह और मलका इन्हें देखकर दंग रह गए। उनके शहजादे और शहजादियों ने जब इन्हें पहन कर देखा तो वो भी खुश हुए। मूंगी का काम ख़त्म हो गया था, इसलिए उसने बादशाह से अपने घर जाने की इजाज़त तलब की। बादशाह ने उसे बहुत सारी सोने की डलियाँ दी। इतनी सारी दौलत पाकर मूंगी बहुत खुश था। उसका दोस्त बोना उसे दूर तक छोड़ने आया था। मूंगी घर पहुंचा और सारी सोने की डलियाँ लाली के हवाले कर दी। मूंगी ने इन डलियों को बेचकर सबसे पहला काम ये किया कि अपनी एक बहुत अच्छी सी एक दुकान बनाई, ताकि वो बारिशों के मौसम में भी अपना काम इत्मीनान से कर सके। जब ये काम मुकम्मल हो गया तो उसने अपना एक अच्छा सा घर भी बना लिया। अब उसके दिन फिर गए थे और वो अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी के दिन गुजारने लगा। इस तरह मूंगी को बोने से अच्छा सलूक करने और उसकी मदद करने का इनाम मिल गया था। तो प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।